Good morning, students. Welcome to the Visual Education. And you can also subscribe us on our YouTube channel, Visual Education. In the previous class, we have discussed some basic definitions about the types of quadrilateral. Today, we will discuss about their properties. Okay. Now, look at the first slide. There is a Venn diagram on your screen. Okay. Venn diagram having the quadrilateral. Okay. Inside it, there is trapezium, kites, rectangle, square, rhombus, and parallelogram. All these are called quadrilateral. Okay, all trapeziums are quadrilateral, yes. All kites are quadrilateral, yes. All rhombus, square, rectangle, parallelogram are quadrilateral, yes. Okay, when we come inside the quadrilateral, we will find there is a separate class of trapezium and kites. ये दोनों के अलग अलग क्लास होते हैं, ठीक है ना. मतलब हम कह सकते हैं जितने भी ट्रेपीजियम में क्वाड्रिलेटरल होंगे. ओके, जितने भी काइट्स है क्वाड्रिलेटरल होंगे, लेकिन क्या ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होंगे? नो. काइट्स पैरेललोग्राम होंगे? नो. ओके, now you will come inside the this figure. Okay, you will get rhombus, square, and rectangle. All these are called parallelogram. Okay, all rhombus, squares, and rectangles are parallelogram. Yes, all rhombus, all squares, or all rectangles are parallelogram. Okay, when you come inside the parallelogram, you will find there separate classes of rhombus and rectangle. Okay, means there is some squares whose property match with rhombus. Not all squares are rhombus. There are some squares whose property are matched with rhombus. We consider some squares are rhombus. Yes, some squares are rhombus. या फिर some rhombus are square. Yes, it may be. Or now comes to the rectangle side. You will get a green figure here. Rectangles. All rectangles are square. All rectangles are square. जितने भी रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होंगे? नहीं. लेकिन देयर इज सम रेक्टेंगल्स, सम स्क्वायर्स व्हिच प्रॉपर्टी विच रेक्टेंगल्स. ओके, तो सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यस. और सॉरी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस. देयर इज सम रेक्टेंगल्स व्हिच प्रॉपर्टी मैच विथ स्क्वायर, मींस सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, या इट मे बी. ओके, नो. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सबसे पहले हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे. What is rectangle? We already discussed in the previous lecture about the rectangle. What is rectangle? A quadrilateral whose opposite sides are parallel. एक ऐसा quadrilateral जिसका opposite side क्या है? Parallel है. Now look at the figure. ABCD. ABCD is a rectangle whose side AB equals to its opposite side BC. Similarly, AD equals to BC. करा क्या? rectangle क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल भी होता है और इक्वल. मींस ए बी पैरेलल टू, इसका अपोजिट साइड ए बी पैरेलल किससे हो जाएगा? डी सी का. और ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा? बी सी का. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डन. इंटरनल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जितने भी एंगल्स होंगे रेक्टेंगल के वो क्या होंगे? सेम होंगे. मीन्स ऑल इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल. वो कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री के होंगे. ओके, नाउ हाउ विल यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर डिफाइन इटसेल्फ द सम ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, नाउ लुक एट द फिगर. This length is y, so its opposite length is also y. This length is x, its opposite length is also x. Now the sum of all the sides means perimeter equals to x plus y plus x plus y, means 2x plus 2y. Now take the 2 common, you will get x plus y. Now the perimeter of rectangle is 2 times of length plus width. Okay, now how will you find the area of rectangle? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में सिंपली क्या होता है? वो मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ को विड्थ के साथ. ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? एक्स इंटू वाई. ओके, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ. हाउ विल फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स? टू फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स, अब देखो मान लो ये वाई है और ये एक्स है, और ये क्या हो जाएगा? डायगोनल क्या होता है? दो अपोजिट एंगल, ये हो गया, इसको जोड़ देंगे, ये डायगोनल होगा. डी मान लेते हैं इसको, ठीक है ना. अब देखो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा.
ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, मीन्स वी विल गेट डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, मीन्स डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल. डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. क्या बोल रहा है, डायगोनल क्या होता है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कहाँ करता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करता. मान लो एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, डायगोनल जो इंटरसेक्ट किया ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा. ओके, एंगल्स एट द इंटरसेक्शंस कैन बी डिफर, वो डिफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मान लो ये हो जाएगा 30 डिग्री तो एक हो जाएगा 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. 140 हो गया, ये 40 हो गया, लेकिन क्या होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. अपोजिट एंगल्स आर एट इंटरसेक्शंस आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है ना, क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल्स, ये जो होगा अपोजिट एंगल जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसका जो अपोजिट एंगल, मान लो ये इंटरसेक्ट के यहाँ पे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये. ठीक है ना, तो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, फिर ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. ये दोनों एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, नाउ व्हाट इज स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका सब साइड होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाए, इक्वल लेंथ का हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, हम स्क्वायर बोलेंगे. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितने साइड्स होंगे सब इक्वल होंगे. एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितने भी एंगल होंगे वो सब इक्वल होंगे, यानी 90 डिग्री ईच. टोटल इंटरनल एंगल इज 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री. सो द सम ऑफ द ऑल द एंगल ऑफ a square is 360 डिग्री. ओके, ऑल इंटरनल एंगल आर 90 डिग्री. ओके, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये 90 तो ये भी क्या होगा 90. ओके, ये भी क्या होंगे 90 डिग्री. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, और क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. तो वी कैन से दैट it is also the properties of square, but its diagonal bisect. Now comes to the point, how will find the perimeter of a square. Okay, तो सिंपली क्या बोलते हैं, perimeter के लिए हम लोग साइड जितने भी होंगे सबको सम कर लेंगे. तो इसके सब साइड क्या होंगे, बराबर होंगे. मान लेते हैं एक साइड है जो ए लेंथ का है, तो सब लेंथ कितना होंगे, ए, ये भी ए और ये भी ए. यानी क्या हो जाएगा, perimeter इक्वल्स टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा 4a. ओके, 4 इंटू वेयर ए इज द साइड लेंथ. एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं. तो लेंथ में यहाँ ए है और विड्थ भी क्या है मेरा ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर. तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. ठीक है, डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल. हम इसका लेंथ निकालना है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर. तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर. अब देखो ए स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ए रूट 2, ए रूट 2. डायगोनल क्या हो जाएगा, ए रूट 2. ओके, ना प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. यहाँ पर देखो, वहाँ पर जो डायगोनल था रेक्टेंगल में वो इंटरसेक्ट कर रहा था 90 डिग्री पे नहीं, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल जो होगा उसका वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, 90 डिग्री पे. ये 90 और ये 90 होगा. ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, 90 डिग्री है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे. डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स क्या होंगे, दोनों डायगोनल क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे. डायगोनल दोनों होंगे वो क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे. ओके, नाउ कम टू द अनदर स्लाइड इज पैरेललोग्राम. व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel. मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम whose ए बी लेंथ इज इक्वल्स टू डी सी, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू डी सी इक्वल्स टू ए डी और ऑल्सो बी सी पैरेलल टू ए डी. ओके, नाउ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब ये जो एंगल होंगे, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. ओके,
एंड ऑल्सो द सम ऑफ देयर एंगल, एंगल डी प्लस, देखो अब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल का दोनों का सम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा दोनों का सम 180 डिग्री। ओके, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको सप्लीमेंट्री एंगल ही बोलेंगे। ओके, नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये क्या करता है, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द हाफ वे मिड पॉइंट, मतलब सिंपल बात, अगर ये दोनों क्या हो गया, दोनों ये दोनों यहाँ मिड कर रहा है तो क्या होगा, ये मिड पॉइंट कहलाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहलाएगा, और ये लेंथ का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ओके, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो लोग। इच डायगोनल सेपरेट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हाँ अब देखो इस डायगोनल ये और ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना, ये और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहला जाएगा। ओके, इच डायगोनल सेपरेट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, देखो ये इंटरसेक्ट किया ना, तो ये डायगोनल क्या करेगा, ये यहाँ किया तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया, यहाँ पर भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। ओके, now look at this triangle and this triangle, this length is equals to this length, this angle equals to this angle, okay, this angle equals to this angle. Okay, alternate angle, this angle equals to this angle, so this triangle is congruent to this triangle. Okay, this side equals to this side, this side equals to this side. Okay, we will also find like this perimeter of parallelogram. Now opposite sides are parallel and equal, this length is a, this is length is also a, this length is b, this also b. Okay, the sum is a plus b plus a plus b, we will get 2 times a plus b. Okay, now what is the area of parallelogram, the area of parallelogram क्या होता है, बेस इनटू हाइट, अगर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ, बेस दिया हुआ उसका 10, ठीक है ना, और हाइट दिया हुआ 6, तो एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल बेस इनटू हाइट, यानी कितना आ जाएगा 60 मीटर समथिंग यूनिट स्क्वायर। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, कह रहा है ABCD इज पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेस और हाइट निकालेंगे। मान लो इसका हाइट कितना दिया हुआ है 3, लेकिन इसका बेस हम लोग निकाल नहीं पा रहे, बेस तो दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेस निकालेंगे। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, BADC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, इसको मान लो x, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर, क्या होगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर, एंड 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर, x का वैल्यू निकालेंगे तो √25 इक्वल्स टू 5 आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ओके, x का वैल्यू 5 आ गया, अब क्या निकालेंगे एरिया, तो एरिया निकालेंगे, ये लेंथ आ गया 5 और ये हाइट कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया 15 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में वो करना, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट्स। ओके, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जितना बेसिक क्वेश्चन होंगे एरिया का up to the parallelogram, whether it's from the rectangular, square or parallelogram, you can solve it on from your exercise. Okay, thank you.